Hello guys, welcome to EduTab once again. So today's lecture is related to part 2 of your costing revision series in which we are doing top 100 MCQs for costing. I hope you would have already watched the first part of this video in which we did the first 30 questions, and today we are going to continue from there, and we are going to do the next 30 questions out of the top 100 MCQs that are meant to be covered for costing. The questions that we are covering in this series are not just any random questions, rather, they are based upon the concepts which are important for you. That is, there is a good probability that in your exam you will get questions based upon those concepts. So, do not look at this session just from the point of view that we would be doing 30 MCQs, rather, look it from the point of view that you will be learning 30 concepts, and if you learn those 30 concepts, you will be able to solve any damn question on the earth that is related to those 30 concepts. So without wasting any time, let's start. But before starting, I would request you to join our YouTube channel in case you have not joined. Subscribe to it and press the bell icon so that you get all the latest updates. So this is the question number 1 on your screen. A job costing can also be a type of. A job costing can also be a type of process costing, B batch costing, C contract costing, D both B and C, E all of the A, B and C. See, earlier we have studied that job costing is something in which something customized is being done. So job costing is basically of two types: batch costing and contract costing. Let me use the pen. Yeah, batch costing and contract costing. The difference between batch costing and contract costing is that both of them are related to customized areas. That is, in contract costing and batch costing, you do something customized for your customer. But in contract costing, you basically use it when the contracts are of really large duration. For example, you want to build a bridge or a dam, then contract costing would be used. बैच कॉस्टिंग कब यूज होता है व्हेन यू वांट टू produce things in batches, but each batch would make something different in that batch. Maybe you want to produce shoes, so in one batch you will produce shoes of black color size number 8, in another batch you will produce shoes of say 10 size and green in color. So each batch would have different make coming out of that batch, but both are considered as job costing because in both of them you are kind of doing a customizing. So both B and C are correct, they are part of job costing. So our answer here would be option number D. ठीक है जी. So the explanation is given here, whatever I have told you earlier also. So when you get the PDF of this video, that you can get by joining a Telegram channel, and the link for our Telegram channel is given in the description of this video. तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो रीड द डिस्क्रिप्शन और द एक्सप्लेनेशन, बट आई एम alongside telling you the explanation in my way itself. Let's come to question number 2. In a job order costing system, which of the following costs is not an example of manufacturing overhead cost? इनमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट नहीं है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वही होगा जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ओवरहेड होगा. मे बी the salary of a supervisor who is supervising the manufacturing process is an overhead for manufacturing. Maybe the rent of a factory where you are manufacturing the things is an overhead for manufacturing. But if you see option number D, sales commission is something which is incurred after the manufacturing is done. It's part of selling and administration. Right. So sales commission is not an example of manufacturing overhead cost. So here answer would be option number D, because here they are asking about not. Please always read the question carefully. Here they are asking about not, and sales commission is not an example of manufacturing overhead cost. Labor cost is something related to manufacturing. Fuel which is used in factory is related to manufacturing overhead. Salary of production manager is related to manufacturing. So all these A, B, C are related to overheads of manufacturing. So answer here would be option number D. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी ओवर अप्लाइड. कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ज्यादा कब अप्लाई हो जाएगा, किस सिचुएशन में? When actual overhead is less than applied overhead? Yes, that is the answer. Suppose your actual overhead is rupees 100.
but what you apply is 150. So here the applied overhead is greater or actual overhead is less than the applied overhead. It means manufacturing overhead has been over applied. Simple. It's based upon common sense, logic. No need to learn even anything for such kind of questions. ठीक है. But ऐसे questions generally exam में confusing हो जाते हैं कई बारी. So we do include such questions so that you understand that yes, some questions can be really easy, not all the questions are really complex. कई बार होता है ना, आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो यकीन नहीं होता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं. तो घबराइएगा मत, आप सही कर रहे होंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. द जॉब कॉस्ट शीट से रिलेटेड है. ऑप्शंस हैं: इज यूजफुल ओनली इन प्रोसेसिंग अकाउंट, contains only direct costs such as direct materials and direct labor, summarizes all costs charged to a particular job, is discarded after production is completed on a particular job. बताइए इसका ऑप्शन. देखिए जॉब कॉस्ट शीट क्या होती है. जॉब कॉस्ट शीट इज समथिंग वेयर यू नोट डाउन or you lay down all the cost that are related to that particular job. आपने शैम्पू मैन्युफैक्चर किए तो इन द जॉब कॉस्ट शीट यू विल इंक्लूड एवरीथिंग. कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना इनडायरेक्ट ओवरहेड हुआ, कितना कितना इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड हुआ, कितना इनडायरेक्ट administration overhead हुआ. You will include everything. So job cost sheet is basically something that summarizes all the costs charged to a particular job. ऐसी होती है आपकी जॉब कॉस्ट शीट अगर आप देखें. सो यू विल हैव मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस दैट विल बिकम प्राइम कॉस्ट. एंड देन देयर वुड बी फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है, फैक्ट्री में जितने भी ओवरहेड है, रेंट है, ग्रीस है, सुपरवाइजर की सैलरी है. देन प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट वुड बी वर्क्स कॉस्ट. फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यूज करेंगे. जो हेड ऑफिस में मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, जो भी आपके फैक्ट्री के बाहर के ओवरहेड्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आएंगे. एंड वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये याद रखना कि जॉब कॉस्ट शीट बेसिकली समराइजेज ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. जॉब कॉस्टिंग इज सूटेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. जॉब कॉस्टिंग इनमें से कौन सी सिचुएशन में सूटेबल है. Option number A is when jobs are executed for different customers according to their specifications. Yes, that is what I told you. जब भी आप कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं वहां पे जॉब कॉस्टिंग आ जाती है. When no two orders are alike and each order job needs special treatment. Yes. ठीक है, आप सोचिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बट उनमें जो भी ऑर्डर है वो अलाइक नहीं है. आप चिकन बना रहे हैं लेकिन हर चिकन में कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है. नमक कम डालना है, प्याज ज़्यादा डालना है. Your hotel is like that you customize, you give special treatment to all your orders. तो both A and B seems to be correct. अब सपोज कीजिए सी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम क्लियर अबाउट A and B that both relates to job costing. So I can find both A and B only in this option. So I will assume that C is also correct. This is the way sometimes you have to use your hunch. So here the answer would be option number E. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग. बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग. द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर ऑल जॉब इज अवेलेबल टू कंट्रोल. Yes, that is the purpose of job costing. It facilitates production planning. Yes. Budgetary control and standard costing can be applied in job costing. बिल्कुल सही है. जॉब कॉस्टिंग के ये सारी एडवांटेजेस हैं बिकॉज यू आर एबल टू सी व्हाट इज योर cost of material, labor and overheads, and you can do budgetary control and standard costing once you are done with the analysis of your costs. So all of the A, B and C is again the answer here. Answer would be option number E. ठीक है जी. चलिए next, this is an interesting question. The total production cost under batch production comprises two main costs, namely the total production cost under batch production comprises two main costs, namely
देखिए बैच प्रोडक्शन में आपकी दो तरह की कॉस्ट होती है। बैचेस में क्या होता है, आप एक बैच के लिए मशीन को सेट करते हैं कि इस बैच में इस कलर का इस साइज का शू बनेगा। ठीक है, तो एक होगी आपकी सेटअप कॉस्ट। अब आप दूसरा कॉस्ट जो होता है बैच प्रोडक्शन में वो होता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अभी दोनों में क्या है कि दोनों आपस में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इफ यू इन वन सेटअप, आपका सेटअप कॉस्ट सपोज कीजिए कुछ रुपए है और आपको लालच आएगा कि जस्ट बाय डूइंग सेटअप वन टाइम आई विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स सो दैट आई नीड नॉट सेटअप अगेन। तो आपका उससे सेटअप कॉस्ट तो कम हो जाएगा क्योंकि आपने एक ही बार सेटअप लगा के 10 लाख शूज बना दिए। लेकिन वो 10 लाख शूज को फिर आपको वेयर हाउस में कहीं पे होल्ड भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट इमीडिएटली, देन योर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल अराइज। दूसरा सिनारियो है कि आप सेटअप बार बार लगाएं और हर सेटअप में से यू प्रोड्यूस ओनली 10,000 यूनिट्स। ठीक है, इसमें आपका सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा बिकॉज यू वुड हैव टू सेटअप अगेन एंड अगेन व्हेन यू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, बट आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दैट वुड डिक्रीज because you just have 10,000 and you will be able to sell immediately to your say distributors or wholesalers. So there is always a balance has to be maintained between setup cost and inventory holding cost. These are the two costs that needs to be considered under batch production. So answer इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, आई होप समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई जॉब हैज अ डैश प्रिपेयर्ड फॉर इट that bears the job number and which is used to collect all the cost data relating to the job. Each job has a dash prepared for it that bears the job number and which is used to collect all the cost data relating to the job. तो जॉब के लिए क्या होता है जिसमें हम जॉब से रिलेटेड सारा कॉस्ट डेटा करते हैं, दैट इज जॉब कॉस्ट कार्ड। Every job has a cost card in which we keep adding the cost that is incurred to complete that job. आप एक ब्रिज बना रहे हैं, उसमें जितना लेबर मटेरियल ओवरहेड लगा वो आप सारा इस जॉब कॉस्ट कार्ड में ऐड करते रहते हैं। सो हियर द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। मंथली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 500 यूनिट्स। तो इसमें बेसिकली आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। मंथली डिमांड दे रखी है आपको, दैट इज 500 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 60, cost of manufacturing per unit is rupees 20 and rate of interest is 10% per annum। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट टू इंटू एनुअल डिमांड विच इज 500 इंटू 12 because 500 is a monthly which is 6,000 into setup cost which is 60 divided by cost of carrying। so cost of carrying क्या होगी, 20 रुपए का प्रोडक्ट है, आप उसको जितनी देर कैरी करेंगे आपको 10% मतलब उस पर एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैरी पड़ रहा है बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग इट। सो 20 इंटू 0.1, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी द इक्वेशन इज सेम। 500 into 12 into 60 divided by 20 into 1, the answer is 600 units, that is option number D। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला है दैट यू नीड टू रिमेंबर। 2 ds, D is the annual demand। In the question we were given 500 is the monthly demand, that's why we multiplied it by 12। take care in the exam if it is monthly demand। then S is the setup cost which is given as 60। then carrying cost per unit is आपका एक प्रोडक्ट 20 रुपए का है, ठीक है, उसको कैरी करने का क्या कॉस्ट है, वही मतलब जो इंटरेस्ट आपको पड़ रहा है। अगर आप उसको बेच के पैसे ले लें तो आप उस पर इंटरेस्ट कमा लेंगे, लेकिन अभी आप उसको रखे बैठे हैं तो आपको वो कैश में नहीं है। तो योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज 20 इंटू 0.1। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 600 यूनिट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक फीचर्स ऑफ बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, फॉर ईच बैच यू प्रिपेयर अ डिफरेंट बैच कॉस्ट शीट। ठीक है, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है आप एक ही जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे बिकॉज फॉर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट हेयर। बट इन बैच कॉस्टिंग सिंस you are making different batches
and different batches are producing different products or products of different make. So each batch will have a separate batch cost sheet which would be used to do the costing for that batch. Each batch is treated as a cost unit. That is correct. Cost unit मतलब आप किस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं, हर बैच की कॉस्ट निकाल रहे हैं. अगर हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द cost of the entire contract. So in contract costing, the cost unit would be the entire contract. But in batch costing, my cost unit would be each batch that I am running. ठीक है, तो बी भी ट्रू है. द कॉस्ट पर यूनिट इज असर्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. ये भी ठीक है जी. आपने हर बैच की कॉस्ट निकाली, सपोज कीजिए 100 रुपए आई और आपने 10 यूनिट बनाई, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10. सो कॉस्ट पर यूनिट इज calculated by dividing the total cost of that batch by the number of items produced in that batch. So option number C is also correct. So here A, B, C are all correct. So my answer would be option number E. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए. A contract account is basically a type of nominal account. See, all the accounts which are related to income, losses, expenses are nominal accounts. In contract account, I mean, you basically try to calculate कि आपका कितना cost आया, क्या profit है. So that is a kind of a nominal account. So here answer would be option number A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? ये देखते हैं. ये तो प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. द कंसेप्ट्स दैट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ इन दिस वीडियो इटसेल्फ, दैट कैन बी यूज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. So let's see who can answer this question. In which of the following industries contract costing would be most appropriate? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने क्या बोला था, कहाँ यूज होती है? when the projects are of large duration. For example, you are building a dam or a bridge which is of large duration, there the contract costing would be used. बेकिंग इंडस्ट्री कोई लार्ज ड्यूरेशन है? टेक्सटाइल मिल भी ऐसा नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री भी नहीं है. सबसे बड़ा कहाँ आएगा? कंस्ट्रक्शन. डैम्स एंड ब्रिजेस कहाँ आते हैं? कंस्ट्रक्शन के अंडर ही तो आते हैं. सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए, work uncertified is valued at and thus does not include an element of profit. वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि वो 10 चेयर्स बनाएगा, 5 चेयर्स उसने पूरी बना दी. आप बोलेंगे ये सर्टिफाइड हो गई, वर्क सर्टिफाइड. फिर जो बाकी 5 चेयर्स हैं वो आधी सी बनी है, किसी के पाँव बन गए हैं, किसी की बाजू बन गई है. नथिंग इज कंप्लीट, right? So here you will say that I can't have anything tangible, so I will say that this is work uncertified. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में द वर्क विच इज अनसर्टिफाइड, काम तो हुआ है, चेयर्स का कुछ कुछ पोर्शन बना है 5 चेयर्स का, बट दैट इज अनसर्टिफाइड. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब हम उसकी वैल्यू लगाते हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम के, सपोज एक ईयर एंड खत्म हो रहा है एंड आई हैव टू कैलकुलेट माय प्रॉफिट, तो मैं उसकी कुछ वैल्यू तो लगाऊंगा ना कि मैंने कितना काम कर दिया है. लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, सेलिंग प्राइस पे नहीं. सपोज ये 5 चेयर्स कुल मिला के अगर देखें तो 20% पूरी हो चुकी हैं और आपको एक चेयर बनाने की कॉस्ट 100 है, बेचने की 200 है. तो अगर आप इसका 20% लगाएंगे विच इज 20% इंटू 200, दैट इज 40. ठीक है, पर आप ये सेलिंग प्राइस का नहीं लगा सकते. सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू दैट द वर्क विच इज अनसर्टिफाइड, काम हुआ है बट अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है, अनसर्टिफाइड है, उसको जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगाएंगे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप उसको कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे. तो आप लगाएंगे कि ठीक है जी, मेरे पास इतना कैश है, इतना ये कुछ है, और ये 5 चेयर्स की जो आप वैल्यू लगाएंगे अपने एसेट्स में, वो आप ₹20 लगाएंगे.
20% ऑफ 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, ओह ये तो बहुत आसान है, आई थिंक यू नीड नॉट वेट इवन फॉर मी टू टेल द आंसर दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. These type of questions are asked in your exam where they will just ask you something as an alternate name of something. You would have understood contract costing at length, you would have understood everything in and out, but suddenly there is a alternate name of that which you do not remember. So how much sad you will feel कि सारा पढ़ लिया यार लेकिन साला ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना. तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप कोसेंगे अपने आप को. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होगा, टर्मिनल कॉस्टिंग है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑल्टरनेट नेम इज टर्मिनल कॉस्टिंग. याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑल्टरनेट नेम इज टर्मिनल कॉस्टिंग. चलिए, द कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है. इफ यू हैव टू बिल्ड अ हाउस एंड यू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टी. The contractee may pay a fixed percentage, say 80% or 90% of the work certified, depending upon the terms of the contract. This is known as. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी. आपने 10 चेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 5 चेयर्स पूरी हो गई और आपने सर्टिफाई कर दिया दैट दीज चेयर्स आर ओके इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आई सर्टिफाई देम. तो इन 5 चेयर्स की सपोज कीजिए वैल्यू है 200 रुपये. जो एग्री हुई थी ये 5 चेयर बनाने के, वो आपसे 200 रुपये लेंगे. पर क्या आप उनको 200 रुपये दे देंगे, नहीं. आप उनको से सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सिर्फ 80% देंगे अभी. क्यों जी, क्योंकि बाकी 5 चेयर्स तो बननी बाकी है ना. पता चला आपने 200 के 200 रुपये दे दिए और वो काम छोड़ के चला गया कि चलो यार छोड़ो, बाकी 5 क्यों बनानी है, इसमें ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है. So there would be something written in the contract that once the work is certified, you will not give the entire money. The value of the work certified is 200. You will not give the entire money. You will give some percentage of that. That is called as cash ratio. And here the 20% that you would be keeping with you, that would be retention money. या 20% क्यों रख रहे हैं कि भैया एक तो बाकी काम ना रुक जाए, कहीं कॉन्ट्रैक्टर भाग ना जाए, या फिर इन 5 चेयर्स में भी सपोज आगे जाके पता लगा कि यार जो मटेरियल था बहुत गंदा यूज किया, अभी तो देखने में सही लग रही है लेकिन बाद में पता चले कि यार इसने तो कुछ अलग ही यूज कर लिया, मुझे कुछ और बताया. तो वो 20% आप रखते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ पता चले, सो यू कैन डिडक्ट. ठीक है जी. सो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो ये 80% आप दे रहे हैं, दिस इज कैश रेशियो ऑफ द एंटायर वर्क सर्टिफाइड, रेस्ट 20% इज रिटेंशन मनी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. 100 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस इन विच नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट. इफ एक्चुअल आउटपुट इज 97, देन देयर इज व्हाट. बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ऐसे पक्का आएंगे. 100 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए. नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है लॉस जो होना ही है. आपने 10 किलो आटा लिया और आपने बिस्किट्स बनाए. अब आपने जो बिस्किट्स को वे किया वो है 9.8 kg. आप बोलेंगे यार मैंने आटा 10 किलो लिया और बिस्किट सिर्फ 9.8 kg की है, बाकी कहाँ गए. तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में कुछ चीजें लॉस होती हैं. मशीन पे लगा रह जाएगा कुछ आटा मतलब वेस्ट हो जाता है, डालते डालते गिर जाता है. सो दे देर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट सम पार्ट वुड लीड टू नॉर्मल लॉस. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में एक नॉर्मल लॉस माना जाता है कि इतना लॉस तो होगा ही होगा. सो इन दिस क्वेश्चन दैट नॉर्मल लॉस इज गिवन एज 5%. So it means if 100 units were introduced, I am assuming normal loss of 5%. So I am expecting कि 95 units बाहर आएंगे. बट एक्चुअल में कितने आए भाई, 97 आ गए. मैं तो 95 एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि 5% लॉस था. बट इन एक्चुअल व्हाट आई गॉट इज 97. वाह भी वाह, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना. आपके एग्जाम में सपोज कीजिए आपको लग रहा है कि नंबर आएंगे 80 लेकिन आ जाए 85, फिर तो कितने खुश होंगे आप, लड्डू बांटेंगे, है ना. तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है. तो 95 से एक्सपेक्टेशन लेकिन एक्चुअल 97. सो ये क्या है, ये आपका गेन है. पहले तो ये गेन है, आपको कुछ मिला, और इसको हम एबनॉर्मल गेन बोलते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको मिल गया, एबनॉर्मल गेन है.
कितना एबनॉर्मल गेन है? 2 यूनिट्स डिफरेंस है जो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आसान है ऐसे क्वेश्चन, घबराना नहीं है, मजे से करना है। 2 यूनिट्स। ठीक है, इन्होंने बहुत कैलकुलेशन किया है, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ डैश प्रोसेस लॉस इज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड यूनिट्स। ये बताइए। देखिए, मैंने पहले भी समझाया, नॉर्मल प्रोसेस लॉस जो होता है दैट इज एक्सपेक्टेड, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने 10 किलो आटा लिया और आप एज्यूम कर रहे हैं दैट 1 kg विल गो वेस्ट, आपके बिस्किट्स आ गए 9 kg। 1 kg लॉस हुआ, दैट वाज अ नॉर्मल लॉस। लेकिन सपोज कीजिए आपकी आउटपुट आती है 8 kg, then your loss is 2 kg. You expected one as a normal loss, which is an industry standard, but you incurred a loss of 2 kg. So here 1 kg would be abnormal loss. ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। Now the cost of dash process is absorbed in the production of good units. ये चीज समझिए कि जो नॉर्मल प्रोसेस लॉस होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस लॉस होता है, मैं उसको अपने यूनिट्स की कॉस्ट में ऐड करता हूं, निकालता नहीं हूं। जैसे मैंने 10 kg आटा लिया और मेरी 9 kg आउटपुट आ गई, 1 kg मेरा लॉस हुआ, दैट्स अ नॉर्मल लॉस। सो द इनपुट कॉस्ट दैट आई विल कंसीडर इज 10 kg। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 9 kg की कॉस्ट लूंगा, इट्स अ नॉर्मल लॉस, सो आई विल इंक्लूड दिस एंटायर कॉस्ट ऑफ 10 kg इन माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन सपोज कीजिए आपने 10 kg आटा लिया, 5 किलो गाय खा गई रात को, भाई आपने रख दिया बाहर, गाय खा गई मन चम 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 करके सारा, बचा 5 kg। तो जो ये 5 किलो गाय खा गई, ये तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। ये हमेशा तो नहीं होगा, ये वन टाइम आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। विल यू इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नहीं, आप नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये वन टाइम एबनॉर्मल लॉस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप एज्यूम करेंगे यही मान के कि ये लॉस नहीं हुआ है। तो क्या ये लॉस मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा? करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली बाद में जब आप अपनी पी एंड एल बनाएंगे तो वहां पे आप इस 5 kg को एडिशनली डिडक्ट कर देंगे एज एन आउटसाइडर लॉस। ठीक है, समझ आ रही है? वाई डू नॉट आई इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखिए, अब सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, दे आर मेकिंग कार्स, एंड सडनली किसी दिन अर्थक्वेक आया और उनकी 1000 कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो बन रही थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तब इसका इम्पैक्ट बाकी कार्स की कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 1000 कार्स जो अर्थक्वेक के कारण खराब होगी, आप इसको इग्नोर करेंगे, आप इसको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं मानेंगे। आप इसको वैसे एक लॉस मानेंगे जो बाद में एंड में आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में से डिलीट कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे रेदर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही आए, ज्यादा वेरी ना करे, इसलिए आप एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं गिनते हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे लॉसेस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गिनने लग जाएं तो कभी कभी हो सकता है कि योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस सो हाई कि आपको लगेगा कि जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है उस पर तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉसेस पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसका आंसर नॉर्मल लॉस है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज डैश कॉस्ट and is written off to the costing profit and loss account. This is what I was explaining you in the earlier question itself, that our abnormal loss is not added to the cost of production, rather it is treated as a period cost। कि उसको हम एक अलग से लिख के रख लेते हैं कि इस पीरियड में, इस क्वार्टर में हमारा इतना एबनॉर्मल लॉस हो गया है, जिसको एंड में सपोज मैंने 100 यूनिट बेचे और पर यूनिट मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, मुझे 1000 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन मेरा कुछ एबनॉर्मल लॉस था, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा एंड में 500 का, जैसे 500 का एबनॉर्मल लॉस था। सो एबनॉर्मल लॉस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये मान लिया जाएगा, बट नॉट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं, दैट वॉट एवर एबनॉर्मल लॉसेज हैव occurred in a particular period, they are assigned to that period and later they are transferred to the profit and loss account, from where they are deducted from your actual profit or loss. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से. आई टेक सम रेस्ट फॉर 1 minute. In the meantime you read this question and let me know that what will be the value of abnormal loss. बताइए बताइए जल्दी. 50 units are processed at a cost of rupees 80. Normal loss is 10%. Each unit carries a scrap value of 25 paisa. If output is 40 units, the value of abnormal loss will be. अगर आप समझें यहाँ पे सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस क्यों है. आपने 50 यूनिट्स इनपुट किए, एबनॉर्मल लॉस 10%, नॉर्मल लॉस कितना है 10%. सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज दैट 10% ऑफ 50 विल बी अ नॉर्मल लॉस. सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू विल गेट 45 यूनिट्स एज आउटपुट, बट आउटपुट में आई सिर्फ 40 यूनिट्स, मतलब 5 यूनिट्स आपकी स्क्रैप हो गई. एंड ईच ऑफ दीज scrapped units will have a value of 25 पैसा पर यूनिट. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए आपका टोटल कॉस्ट है 80, आपने इनकर किया, माइनस सम वैल्यू यू गॉट इन रिटर्न एज स्क्रैप, दैट इज 5 इंटू 0.25, राइट. एंड देन हाउ मेनी यूनिट्स you produce 50 minus 10%, that is 5. So that is the cost of producing 45 units, out of which 5 were scrap. तो यहाँ से आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी, एंड व्हेन यू गॉट योर कॉस्ट पर यूनिट यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 5, दैट विल बी योर एबनॉर्मल लॉस. क्योंकि आपकी 5 यूनिट बेकार हुई हैं, तो उन 5 यूनिट की कॉस्ट क्या है वो आपको मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा. ठीक है, आंसर यहाँ पे 8.75 आएगा, ऑप्शन नंबर सी. देखिए यही कैलकुलेशन किया है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 80 माइनस 0.25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस 50 माइनस 5 और इनटू जितनी टोटल यूनिट्स है एबनॉर्मल लॉस की. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. In the inter-process profit, sometimes the output of one process is transferred from one process to another, not at dash but at dash, to measure efficiency of each process. बताइए मुझे. In inter-process profit, sometimes the output of one process is transferred from one process to another, not at dash but at dash. देखिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है. सपोज कीजिए आपको एक चेयर बनानी है. नाउ इन वन प्रोसेस सपोज द वुड इज कट, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में उस वुड को सपोज मशीन से जोड़ा जाता है, देन इट इज पॉलिश्ड. तो ये आपके इंटर प्रोसेसेस चल रहे हैं. क्या चल रहे हैं आपके इंटर प्रोसेसेस, क्या चल रहे हैं आपके इंटर प्रोसेसेस. सो इन समटाइम्स व्हाट दे डू इज के जो इस प्रोसेस का आउटपुट है और इसको जो ये इनपुट मिलेगा, ठीक है, वो एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं, बल्कि let me read the sometimes the output of one process is transferred from one process to another. हाँ, वो एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं, नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट बट एट एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस. तो अगर इसको ये 50 का मिल रहा है लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 55 है, सो दे विल ट्रांसफर इट एट रुपीज 55 टू दिस. व्हाई दे डू सो? सो दैट ईच प्रोसेस
becomes responsible for maintaining their profits. तो ये वाला process will show that I made something at 50, I sold it at 55 and I am profitable. So that will basically give the ownership to each part of the process or each process within a bigger process, that they are able to deliver something with efficiency. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. देखिए ये स्टेटमेंट्स आप पढ़िए, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाई प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट. द बाई प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स which come out during manufacturing along with the main product. ठीक है, you are producing sugar, along with sugar you are also getting molasses. Now here the main product is sugar. The significant product is sugar by market value, whereas molasses is not that important because it is not having significant value as compared to sugar. So molasses is a byproduct. Joint product में क्या होता है कि सारे products almost same value के होते हैं. आपने क्रूड ऑयल को यूज करके यू हैड से पेट्रोल प्लस केरोसिन प्लस नैप्था, आपने ये सारा कुछ निकाला ना. एवरी वन हेयर दैट आर कमिंग आउट एज प्रोडक्ट्स आर समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू. इनका ऐसा नहीं है कि एक का प्राइस बहुत ज्यादा है एक का प्राइस बहुत कम है. सो ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, देन ऑल दीज वुड बी कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट्स. हियर शुगर विल बी द मेन प्रोडक्ट, मोलासेस वुड बी द बाई प्रोडक्ट. सो अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ें, बाई प्रोडक्ट्स are the products or of two or more products of almost equal economic value. नहीं, मोलासेस शुगर के बराबर इक्वल वैल्यू का नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू विच आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट. नहीं, ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं. जो यहाँ पे डेफिनेशन जॉइंट प्रोडक्ट्स की दे रखी है, दे आर एक्चुअली बाई प्रोडक्ट्स. जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली. In fact, in the joint products, all are the main products. Joint products may not be saleable after separation. No, this is wrong. You can sell petrol also, kerosene also, naphtha also. That's why they are called joint products. हाँ, शायद molasses आप नहीं बेच पाए, but then it would be called byproduct. The quantity of each co-product cannot be changed by the management. The quantity of each co-product cannot be changed by the management. This is wrong. What are co-products? In co-products, what happens is co-products are products of almost similar types. If you are running a bakery, you are producing a cake. You might produce biscuits also. You might produce rusks also. You might produce some patties also. Right. So all these are co-products. So in co-products, it's like a common relation between them, that they are related to each other in some way, but their manufacturing process is not same, their input material is not same. So co-product में आप change कर सकते हैं quantity. जैसे suppose कीजिए one company Hyundai is making Creta also, i20 also. These are co-products by Hyundai, but as Hyundai want, they can change the quantity of one product depending upon how much that product is in demand or not in demand. तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी चेंज, दैट इज रॉन्ग. Co-products refer to more than one product being manufactured by a company but need not necessarily arise from the same raw material and the manufacturing process. This is right. This is damn right. कि co-products में आप दो प्रोडक्ट बना रहे हैं पर ज़रूरी नहीं है दैट दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल और सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज इट विल हैपन इन केस ऑफ Hyundai i20 और Creta. So E is the right option. I hope you are clear about the difference between by-product, joint products and co-products. Co-products में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बस वो एक ही जगह बन रहे हैं. ठीक है, मे बी एक ही मशीनरी यूज करके बन रहे हैं, दैट्स वाई दे आर द co-products. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश costs are those costs which are incurred before that stage in manufacturing at which the products get separated. ठीक है, सपोज कीजिए आप कोई प्रोसेस में हैं, आपने यहाँ पे कॉस्ट इनकर की और इसके बाद यहाँ से दो प्रोडक्ट निकल गए.
तो जो ये कॉस्ट आपने इनकर की है बिफोर द पॉइंट दे गॉट सेपरेटेड, व्हाट आर दीज कॉस्ट्स कॉल्ड? भैया दीज आर कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट्स. वेरी सिंपल आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दीज कॉस्ट्स आर इनकर्ड jointly by all the products which are to be produced later. Which method of costing is suitable for industries like canteen, electricity, and hospitals? Canteen, electricity, and hospitals are basically related to service or operations. So the method of costing that would be suitable for canteen, electricity, and hospitals, it would be operating costing. Answer here would be option number B. ठीक है जी. Output costing is used when we have almost similar like of products being manufactured. ठीक है. प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन होगी. Nirma, Surf, soaps, all these are being produced using all these are produced using standardized processes in a standardized manner. Process costing is applicable there. Contract costing हम डिस्कस कर ही चुके हैं. यहाँ पे आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. चलिए ये बताइए, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पैसेंजर किलोमीटर्स यूज करने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितने पैसेंजर्स टोटल कितने किलोमीटर्स चल रहे हैं. नंबर ऑफ बसेस कितनी है, ध्यान से पढ़िए. नंबर ऑफ बसेस 6 है. 25 दिन चलती है महीने में. एक दिन में 8 ट्रिप है. डिस्टेंस बिटवीन वन लोकेशन टू अनदर वन साइड इज 20 किलोमीटर्स. कैपेसिटी 40 है और नॉर्मली 80% यूटिलाइज होता है. तो 6 बसेस, ठीक है. हर एक बस 20 किलोमीटर चलती है वन साइड. तो राउंड ट्रिप में इंटू 2, कितने ट्रिप्स मारती है एक दिन में? 8. ठीक है. और एक टाइम में कितने पैसेंजर कैरी करती है? 40. बट यूटिलाइजेशन इज 80%, मतलब 40 पूरे नहीं भरते हैं, तो 0.8. ये डेली का हो गया जी. इनटू कितने दिन चलती है? 25. तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट एन आंसर. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कवरिंग द किलोमीटर्स, दैट इज पैसेंजर किलोमीटर्स. सो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है जी. ठीक है. 6 बसेस into 20 kilometer daily into round trip into 8 trips per day into 40 passengers in each trip at 80% capacity into 25 days. सारा वही है जी. तो आंसर इज 1536000. So here your answer would be option number A. In operating costing, two types of services are generally compounded together to express cost per unit. What it is called? तो अभी हमने जो देखा कि आपने किलोमीटर यूनिट तो पढ़ा होगा, लेकिन हमारा यूनिट पिछले क्वेश्चन में क्या था? पैसेंजर किलोमीटर. तो आपने दो चीजों को कंबाइन किया. यहाँ पे दो चीजों को कंबाइन किया. ऐसे यूनिट को हम क्या कहते हैं? ऐसे यूनिट को हम कहते हैं कॉम्पोजिट यूनिट. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है जी, कॉम्पोजिट यूनिट. सो सिमिलरली अगर आप ट्रकिंग के बिजनेस में हैं, obviously you will not calculate your cost just by how many kilometer the truck is running, but it will also depend upon that per each kilometer how much ton that truck is carrying. खाली जाएगा तो भैया ज़्यादा efficiency आएगी, लदा हुआ है बाहर से तो कम efficiency आएगी. So you calculate your cost in terms of ton kilometers, कि कितने टन कितने किलोमीटर्स तक उठाने में क्या cost है. That is called a composite costing. In hotel services, the depreciation is considered as, होटल में depreciation is considered as a fixed charge. कस्टमर आए ना आए, कोरोना काल है, होटल बंद है, बट डेप्रिसिएशन तो होगी. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. चलिए कुछ पीवाई क्यूज करवा देता हूं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. आई होप यू वुड बी एबल टू डू दिस पीवाई क्यू. 800 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस. Sorry, 8,000. 5% is the normal loss. So it means 5% of 8,000, that is 400 units, are considered to be normal loss. It means you are expecting 7,600 units to be released. Now out of this 7,600, it is saying that 6,600 units are transferred to the next process. That out of this 7,600, 6,600 units are completely transferred to the next process. They are complete. तो 6,600 हमारे complete हैं जी. बाकी 1000 रह गए. 1000 यूनिट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 60% कंप्लीट. तो जो बाकी 1000 हैं वो सिर्फ 60% कंप्लीट है.
It means 1000 into 0.6, that is 600. ठीक है, तो ये 1000 सारे नहीं कंप्लीट हैं, 60% कंप्लीट हैं, सो आई विल एज्यूम कि 600,000 में से कंप्लीट है. इक्वलेंट प्रोडक्शन, equivalent units which are complete. So my total units which are kind of complete are 6600 plus 600. कंप्लीट इसमें 6600 ही है, बट इक्वलेंट यूनिट्स का मतलब वही होता है कि जो आधा पचद्दा है उसको अगर हम काउंट करें कन्वर्ट करके पूरे में तो कितना पूरा हो गया है. सो दैट इज 6600 प्लस 600, दैट इज 7200. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है जी. चलिए, इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स or render services against specific orders as distinct from the continuous production for stock or sales use the dash method of costing. Industries which render services against specific orders, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर पे ही काम करती हैं कि जी मेरा घर ऐसा बना दो, मेरा पिज्ज़ा ऐसा बना दो. दैट इज बेसिकली यू आर कस्टमाइजिंग द थिंग्स. So when you are customizing the things, that is called job costing. So here answer would be option number A. Right? So thank you guys. With that, I complete all the 30 questions. I think it took time, but I hope you would have enjoyed this session और आपने अपने आप को टेस्ट कर लिया होगा, रिवीजन अच्छी होगी. That is the purpose of these sessions. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताइएगा टाइप करके कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे. ठीक है, because that will also give us an idea that what is the preparation level of you guys, so that we can also mold the questions in our next sessions. चलिए, have a nice day. Bye bye.